Welcome back guys to my YouTube channel. So this is the going to be the last video of oxygenation needs, and we have completed in last class till oxygen administration. Now we are from today we are going to start from suctioning, that's oral and tracheal. So without wastage of time, let's start. And this all is in the according to INC syllabus format. Do approach that previous video, part 1, part 2, part 3, part 4 for better understanding. So suctioning, what is suctioning? Suctioning is the process of removing secretion, mucus, saliva, blood, vomits. मतलब सक्शनिंग मतलब तो वो प्रोसेस होता है जिससे हम लोग सेक्रेशंस को बॉडी से बाहर निकालते हैं. सेक्रेशंस हमारे बॉडली सेक्रेशंस हो गए, जैसे म्यूकस हो गया, सलाइवा हो गया, ब्लड हो गया, from the airway using a suction catheter and a negative pressure to maintain a clear airway and adequate oxygenation. Indications: पेशेंट अनेबल टू क्लियर सेक्रीशन, जो पेशेंट खुद अपने आप को अपने सेक्रीशन क्लियर नहीं कर पाते, जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट हो गए, वीक पेशेंट हो गए, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट हो गए, तो इनके मतलब सेक्रीशंस क्लियर नहीं कर पाते हैं लोग. म्यूकस एंड कफ स्प्यूटम हो गया, स्लाइवा हो गया. प्रेजेंस ऑफ गर्गलिंग और रैटलिंग साउंड्स में हम लोग सेक्रीशन को मीन्स क्लियर आउट करना रहता है. डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग ड्यू टू ओरल सेक्रीशन, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है जब हमारे ओरल कैविटी में सेक्रीशन फिल रहता है. सो लेट्स सी what is the procedure. First is wash hand and wear gloves. Connect suction catheter suction to suction machine. मीन्स जो सक्शन कैथेटर होता है उसे सक्शन मीन्स मशीन से अटैच करना रहता है. स्विच ऑन सक्शन, देन वी हैव टू स्विच ऑन द सक्शन बटन. यूजली जो उसका प्रेशर होता है अडल्ट्स के लिए वो 80 to 120 होता है mmHg. देन इंसर्ट द कैथेटर into the mouth. Do not go beyond oropharynx. Then we have to insert the catheter, जो होता है हमें माउथ में इंसर्ट करना रहता है, और हमें ये मेक श्योर करना रहता है that we don't go beyond oropharynx. And apply suction intermittently while moving catheter in circular motion. We have to apply suction intermittently while moving catheter in circular motion. और जो हम कैथेटर हम लोग इंसर्ट करते हैं उसे हमें सर्कुलर मोशन में इंसर्ट करना रहता है. रिमूव कैथेटर एंड अलाउ पेशेंट टू रेस्ट. देन वी हैव टू रिमूव द कैथेटर एंड मेक द पेशेंट टू रेस्ट. Repeat the procedure if needed or to remove excess secretions, and then we have to dispose equipment properly and document the procedure. That was the procedure of suctioning. So yeah, this is and done with oral suctioning, and then we have to do with tracheal suction. So we are done with oral suctioning. Now we are proceeding to tracheal suctioning. It is used in patients with tracheostomy tube or those who are intubated. Endotracheal tube are inserted. Use a flexible suction catheter. Let me show you the figure for better understanding. See, this is the tracheal tube which is inserted by the mouth of the patient till here, and यहाँ पे ये इंसर्ट हो जाता है. फिर यहाँ पे इन्फ्लेटेड कफ होता है जिसे हम वो कर देते हैं, इन्फ्लेट कर देते हैं. मीन्स इसमें हम बलून को फुला देते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे अटैच हो जाता है. एसोफेगस के पास है, देखिए मेनली ट्रैकिया. सो दिस इज़ व्हाट एंडोट्रैकियल ट्यूब. सो सी दिस इज़ द इमेज इज़ क्लियर आई थिंक. So indication when to do tracheal suctioning: when we see visible secretion in tracheostomy tube, coughing without clear secretions, decrease oxygen saturation में भी हम लोग tracheal suctioning करते हैं. जब SpO2 से हम लोग मेज़र करते हैं, SpO2 probe, आई थिंक यू ऑल हैव बीन नोइंग. या तो रुकिए मैं आपको SpO2 probe की इमेज दिखाती हूँ. लेट मी शो यू SpO2 probe. दिस इज़ SpO2 probe. जब इसमें जो ऑक्सीजन की सेचुरेशन दिखाता है, जब ये सेचुरेशन लो हो जाता है, देन वी मेनली डू tracheal suctioning. So yeah, that was about SpO2 probe and that's about tracheal suctioning. और कब करते हैं? नॉइज़ी और गगलिंग ब्रीथ साउंड जब होता है, then we have to do tracheal suctioning. In short, oral suction clear secretion from mouth using Yonker. इट्स अ डिवाइस. ओरल सक्शनिंग में हम क्लियर करते हैं सेक्रीशन फ्रॉम द माउथ. एंड ट्रैकियल सक्शन क्लियर सेक्रीशन फ्रॉम ट्रैकिया बाय कैथेटर टू ईटी या एंडोट्रैकियल ट्यूब. जो मैंने ट्यूब आपको इमेज में दिखाया था वो ईटी ट्यूब इंसर्ट करते हैं माउथ में, जो कि ट्रैकियल सक्शनिंग मेनली कहाँ से, ट्रैकिया से सेक्रीशन को
आउट करता है. गोल, व्हाट इज़ द गोल ऑफ बोथ? टू मेंटेन अ पेटेंट एयरवे एंड इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन. तो आई थिंक you have understand of what was suctioning about oral and tracheal. So we are done with suctioning, that's oral and tracheal. Now we are proceeding to chest physiotherapy, that's percussion, vibration and postural drainage are its components. So let's see chest physiotherapy. So chest physiotherapy, what goal क्या होता है chest physiotherapy का? Goal is to lose, move and clear mucus from the lungs to improve ventilation and oxygen. chest physiotherapy का mainly goal होता है to lose, move and clear mucus. मतलब जब कफ या स्पूटम मीन्स लंग्स में वो कर देता है, बहुत थिक हो जाता है, तो चेस्ट फिजियोथेरेपी के हेल्प से हम लोग लूज़ करते हैं और मूव करते हैं सिक्रीशन को, टू इम्प्रूव वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन, ताकि हम प्रमोट कर सकें ऑक्सीजनेशन को. व्हेन डू वी यूज़ CPT? सो लॉट्स, दैट CPT स्टैंड फॉर हेयर चेस्ट फिजियोथेरेपी. लॉट्स ऑफ सेक्रीशन और वीक कफ, ब्रोंकियोसिस्ट, मतलब ये हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी यूज़ करते हैं. ब्रोंकियोटाइसिस पेशेंट में, सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट में, COPD पेशेंट में एंड विद म्यूकस जिनमें बहुत प्रोड्यूस हो रहा हो, निमोनिया के पेशेंट में और एटलेस्टेसिस के पेशेंट में यूज़ करते हैं. न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हो गया, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट या ICU पेशेंट्स में यूज़ करते हैं. व्हेन टू अवॉइड और बी केयरफुल, कब हमें चेस्ट फिजियोथेरेपी को मेनली अवॉइड करना चाहिए? जैसे अनट्रीटेड नीमोथेरेक्स हो गया, रिब फ्रैक्चर हो गया, फ्लेल चेस्ट, ओस्टियोपेरोसिस, पल्मोनरी इम्बोलिज्म, रिसेंट नेक स्पाइनल सर्जरी. तो इन सब केसेस में हमें रेज ICP, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, यहाँ ICP मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, और अनस्टेबल BP, अरिदमिया, सिविल हाइपोक्सिया, इन सब कंडीशन में हमें नहीं करना चाहिए चेस्ट फिजियोथेरेपी, बिकॉज ये सब ऑक्सीजन सिचुएशन इन सब में लो हो जाती है और इन सब कंडीशन में और सिवियर हो सकता है. तो वी शुड अवॉइड चेस्ट फिजियोथेरेपी इन दीज कंडीशन. दिस वी कैन राइट इन एग्जाम. हेड डाउन पोजीशन, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में हमें अवॉइड करना चाहिए. रिफ्लेक्स, हाइटिस, हर्निया, recent feeding pregnancy, raised ICP, in these all conditions we should avoid chest physiotherapy. Do not do immediately after meals. खाना खाने के तुरंत बाद हमें चेस्ट फिजियोथेरेपी नहीं करना चाहिए. प्रिपरेशन, explain and obtain consent as always. Check orders and vitals, auscultate lungs, note segments with crackles. We have to check the lung segment जिसमें ज़्यादा secretions हैं, and crackles and every noise come from that part. Pain control and bronchodilator. Then we have to check for pain control and bronchodilator nebulization. If prescribed, offer water if allowed. वाटर क्या करता है? जो म्यूकस है उसे थिन करने में, सिक्रीशंस को थिन करता है वाटर. पोजीशन, वी हैव टू प्रोवाइड पोजीशन एज नीडेड फॉर टारगेट सेगमेंट, कीप्स SpO2 प्रोब ऑन, प्रोवाइड ऑक्सीजन इफ ऑर्डर्ड. हैंड हाइजीन, वियर ग्लव्स, कीप टिश्यूज, स्प्यूटम कप. ड्यूरेशन प्लान क्या होता है? 3 से 5 मिनट होता है ऑफ परकशन पर सेगमेंट, फॉलो विद वाइब्रेशन. 3 से 5 मिनट हमें परकशन करना रहता है हर सेगमेंट में, उसके बाद हमें वाइब्रेशन करना रहता है. हम हफ कफिंग को भी कर सकते हैं, ये मेथड होता है सेक्रीशंस को लूज़ करने का. मूव टू नेक्स्ट सेगमेंट, टोटल सेक्शन 20 से 40 मिनट का होता है और हमें 2 to 4 टाइम्स पर डे करना रहता है और एज़ पर ऑर्डर. पर्पज़ होता है वही, लूज थिक सेक्रीशन फ्रॉम ब्रोंकियल वॉल. हाउ कैसे करना है? मेक अ रिलैक्स कप्ड हैंड, अपने हैंड्स को थोड़ा सा कप्ड कीजिए, जैसे शाबाशी नहीं देते हैं उस शेप में से कीजिए, कप्ड हैंड. यूज़ प्रकर्सर कप, रिस्ट लूज, रिस्ट जो होता है वो लूज़ होना चाहिए. क्लैप रिदमिकली ओवर क्लॉथ चेस्ट वॉल, हमें क्लैप करना रहता है रिदमिकली ओवर द चेस्ट वॉल नियर द बेयर स्किन हो गया, स्टर्नम, स्पाइन, ब्रेस्ट और ब्रोनी एरिया. रेट 1 से 1 to 2 क्लैप्स पर सेकेंड फॉर 3 to 5 मिनट्स पर सेगमेंट. हर एक सेगमेंट में 3 से 4 मिनट, 3 से 5 मिनट हमें करना रहता है. आस्क द पेशेंट टू टेक अ स्लो डीप ब्रीथ. स्टॉप इफ पेन, सिवियर डिस्टोरेशन एंड ब्रोंकोस्पाम. टेक्निक 2, तो ये हमारा परकशन हम डिस्कस कर लिया कि परकशन हाउ वी हैव टू डू. नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू वाइब्रेशन. What does vibration do? These help to move the
लूजन म्यूकस टूवर्ड्स लार्जर एयरवे ड्यूरिंग एक्सलेशन, ये जो करता है म्यूकस को लूज कर देता है ताकि ये लार्जर एयरवे की तरफ मूव ऑन कर सके। प्लेस वन और बोथ फ्लैट हैंड firmly of the chest over the target area. At end inspiration, ask the patient to exhale through the mouth. During exhalation, tense your arm, shoulder and vibrate. We have to make a vibrating with our hands. We have to firmly chest पे हमें रखना है। उसके बाद हमें वाइब्रेशन करने के लिए हमारे हैंड को जो है उस शेप में लाना है वाइब्रेशन की उसमें। At the end inspiration, ask the patient to exhale through the mouth. During exhalation, we have to say the patient to exhale. Then हमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना है। डू फॉर 3 to 5 ब्रेथ्स हमें करना है। फिर हमें करना है पेशेंट को इनक्रेज करना है हफ कफिंग के लिए। ये हा ओपन ग्लॉटिस कफ, जब हम हफ कफिंग करते हैं तो ये हमारा ग्लॉटिस को ओपन करता है कफ को बाहर वो एक्सक्रीट आउट करने के लिए। फॉर वेंटिलेटेड एंड ट्रेकोस्टोमी पेशेंट कोऑर्डिनेट विद वेंटिलेटर ब्रीथ एंड सक्शन फॉर 3 to 5 cycles if needed. Technique 3 is the last technique of chest physiotherapy, that's postural drainage. पोस्टल एज अ नेम सजेस्ट पोस्टल ड्रेनेज, देखिए पी से पोस्टल और पी से पोजीशन टू ड्रेन ईच सेगमेंट। पोस्टल ड्रेनेज एक एक पोजीशन प्रोवाइड की जाती है अलग अलग पोस्टल ड्रेनेज के लिए ताकि जो लूजन कफ है वो बॉडी से निकल सके। सो that was about postal drainage. Now let's read it. Use gravity to drain mucus from peripheral to central airways. पोस्टल ड्रेनेज एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि ग्रेविटी यूज़ करता है टू ड्रेन द म्यूकस फ्रॉम पेरिफेरल टू सेंट्रल एयरवे। होल्ड ईच पोजीशन, हम जो भी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं वो 3 से 10 मिनट तक होल्ड करते हैं। और अगर पेशेंट डिस्पेनिक है तो हमें उनको सपोर्ट करना रहता है विद पिलोज एंड ऑल। अपर लोब्स में हम एपिकल, पोस्टीरियर एंड एंटीरियरली करते हैं परकस, एंड राइट मिडल लोब में हेड डाउन करते हैं। सो यू कैन रीड और राइट दिस इन योर नोट कॉपी दैट दीज आर द पोजीशंस विच आर प्रोवाइडेड। सो दिस इज अबाउट चेस्ट फिजियोथेरेपी विच इंक्लूड 3 स्टेप: परकशन, वाइब्रेशन, पोस्टल ड्रेनेज। चेस्ट फिजियोथेरेपी क्यों किया जाता है? ताकि जो म्यूकस है उसे लूजन कर सके और सेक्रीशन ताकि एक्सक्रीट आउट हो सके, जिसमें वाइब्रेशन, परकशन, वाइब्रेशन और पोस्टल ड्रेनेज आता है। परकशन में हम अपने हैंड्स को क्लब्ड करते हैं और पेशेंट के बैक पे वो करते हैं, स्ट्राइक करते हैं ताकि जो म्यूकस है वो लूजन हो सके। वाइब्रेशन में हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं अपने हैंड से ताकि जो सेक्रीशन है वो अपर लोब्स में जा सके और निकलने की कोशिश करे। और हफ कफिंग प्रमोट करते हैं ताकि जो कफ है वो ऊपर आ सके। पोस्टल ड्रेनेज में हम लोग पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन, जिससे सेक्रीशंस बाहर ड्रेन हो सके। So that was all about chest physiotherapy. Now our third topic is care of chest drainage principle and purpose. So let's see purpose, why we use a chest drain. Chest drain remove air from pleural space, pneumothorax, so lungs can re-expand. तो जो हमारा चेस्ट ड्रेन होता है वो रिमूव करता है एयर फ्रॉम प्लूरल स्पेस ताकि जो हमारा लंग्स है वो री एक्सपैंड कर सके। ड्रेन करता है ब्लड हीमोथेरेक्स में, प्लूरल फ्लूइड और इन्फेक्टेड फ्लूइड या पस। रिस्टोर एंड मेंटेन नेगेटिव इंट्राप्यूलर प्रेशर टू इम्प्रूव वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन। अलाउ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लीडिंग और ऑनगोइंग एयर लीक आफ्टर thoracic सर्जरी और चेस्ट ट्रॉमा। So what are the principles that must be maintained? One way flow out of the chest, prevent air entry back into the pleural से one way flow out होना चाहिए of the chest से, जो कि हमारी जो सेटिंग होती है किसकी, चेस्ट ड्रेन की, वो ऐसी होनी चाहिए कि ताकि वन वे फ्लो हो सके, ताकि उसमें एयर एंटर वापस ना प्लूरल स्पेस में एयर घुस जाए। ग्रेविटी सील्ड होनी चाहिए। ड्रेनेज रिसेप्टिकल मस्ट बी बिलो द पेशेंट चेस्ट, स्प्लिटी एंड इंसिशन साइट, जहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं ट्यूबिंग को तो वहाँ पे हम लोग कट करते हैं हल्का सा, तो वहाँ पे स्टेरिलिटी मतलब वहाँ पे मेंटेन रहना चाहिए। एसेप्टिक हैंडलिंग होनी चाहिए ताकि तो हम इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकें। पेटेंसी ऑफ ट्यूब, नो क्लिंग्स, क्लॉट्स और ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होने चाहिए ट्यूब में। सिक्योर कनेक्टिंग्स होनी चाहिए, ट्यूबिंग कलेक्शन एंड चैम्बर सेक्शन,
continuous monitoring of respiratory status, drainage amount, character and systemic function. So let me show you the diagram for better understanding. So this is, see, you can see ये हमारे लंग्स के सेगमेंट है, तो यहाँ पे हमने कट किया होगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी मेंटेन करनी चाहिए, प्रिंसिपल है इसका। यहाँ से ट्यूबिंग अटैच होती है। सी दिस इज़ हाउ इट इज़ कलेक्टेड, सी you can see. So these are the types of chest drain. And what are the indications? Traumatic pneumothorax, spontaneous pneumothorax, post thoracic surgery, lobectomy, लार्ज प्लूरल एफ्यूजन में यूज़ कर सकते हैं। एम्फीजिमिया रिक्वायर्ड ड्रेनेज, लार्ज प्लूरल एफ्यूजन रिक्वायर्ड कॉन्टिन्यूस ड्रेनेज। व्हाट आर द नर्सिंग केयर टाइमलाइन? Before insertion, explain the procedure and obtain consent. Baseline assessment, vital SPO to respiratory, prepare equipment, drainage system, sterile dressing, suction connection, clamp only if order, suction at bedside to order emergency supplies, ensure chest X-ray order post insertion. Why we use chest X-ray? Do you know? Chest X-ray is used to ensure that in correct segment it is being inserted. इंश्योर चेस्ट एक्सरे ऑर्डर पोस्ट इंसर्शन इसलिए भी करते हैं कि हमें देखना है कि इस सेगमेंट्स में ज़्यादा ड्रेनेज है। इमीडिएट पोस्ट इंसर्शन फर्स्ट असेसमेंट। सो दीज ऑल आर द नोट्स यू कैन सी, दीज आर टू बी जस्ट, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, इसमें रीडिंग कर सकते हैं आप। सो दीज आर द नोट्स यू कैन सी and write it as it is. So this was all about today. In next section we are going to start pulse oximetry. Till the time, if you find the video helpful, like, share and subscribe. That's all.